मेरा क्या था कि वहाँ पे मेरे को छुट्टी चाहिए था, मेरे को छुट्टी नहीं मिला और मेरे को नाइट शिफ्ट डाल दिया। नाइट शिफ्ट मतलब 31st सब लोग पार्टी कर रहे हैं, हम लोग खाना बना रहे हैं, दिमाग घुमा हुआ था, दारू मिलना शुरू हुआ एंड आई वाज आउट। So for an Indian mentality to get along with that culture and accept it, who have lived here, जहाँ पे आप एक हाथ करो तो तीन वेटर भाग के आते हैं, तो वहाँ पे वैसा नहीं है. वहाँ पे if you don't leave a service charge, the waiter will question you. Something wrong with my service. उधर जो वर्गनी देना पड़ता है एरिया में, अभी लोगों को लगता था अरे तुमने इतना अच्छा किचन सेटअप किया है, तुम्हें तो इतना वर्गनी तो मिनिमम देना पड़ेगा। उनको कौन बताएगा बाबा मैंने 6 महीने से खुद सैलरी विड्रॉ नहीं की है। Hello, people. We are with the people of Yeti and the Monk, and we have Vicky, Prasad, and Saurabh, the three owners of Yeti and the Monk today. And we are gonna have a conversation with them. इधर उधर का कैसा हुआ, इधर तक हम कैसे पहुँचे, कि भाई वो हम मेरे साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं फिलहाल. So Saurabh, I'll start with you. कि how did we all get here? How did it all started for you? First, tell me about your background, and then we'll slowly come into the conversation. Yeah. So I got into hotel management in 2008. Okay. So all three of us have this hospitality background. All three of us are hotel management graduates. I did my college in Mumbai from Anjuman Islam, and I completed my graduation in 2011. After that, I got a job in Trident through campus placement itself. So there were good campus placements. Oh yeah, there were the Oberois, there was And Taj. what was your told for this thing कि package कितना मिलेगा? See, once you get into like उसमें से उतना first job जो रहता है ना through campus, so you don't think a lot about salary. Okay. It's only about getting into good reputed hotels. कि first once you get into hotel management तुम्हारा ये होता है कि benchmark होता है कि मेरे को ताज में जाना है, ओबेरॉय में जाना है. That is your benchmark. Okay. So to get into that kind of a property, वो उतना enough होता है. Okay. You don't need like मेरे को इतना ही salary चाहिए. नहीं, you don't have a choice. You have a choice, but it's up to you whether you opt for that or not. Okay. And then what happened? So I got into Trident in 2011, and I finished my exams, and within like a week I started working over there That is in Trident. in Trident. Yeah, How was your experience exactly in Trident? it was good. Like for compared to other people who were apart from the break shift that I did, break shift is like very difficult for people who are not who are new basically. So compared to other people who got placed in different hotels, my life was slightly better in a way. Started with a specialty. Yeah, I started with the specialty Italian restaurant over there. Oh, okay. So, which was like good. I didn't have to do all the other rigorous work that everyone has to go through. It was like little. So you are the front person, front office desk. No, I was in kitchen. I was in kitchen. So how many years? So I worked there from 2011 till 2013. Like towards the end of 2013, I quit. And when did you go then after? What did you do after 13? So after that, I took like a sabbatical for a couple of months because I had no clue that where I was heading. Okay. Okay. So there is a phase in everyone's life. Okay. No, but he did some time in Domino's. Yeah, so during that sabbatical, I was figuring out what to do when a relative of mine told me that there is this opportunity to go to the US as an intern where you can actually work and Learn. Huh? earn and learn both things. So I applied for that. That whole process was gonna take 4 to 5 months. Okay. So I had no clue that what to do. Then I got a good managerial position in Domino's. So I got into that. So for 4-5 months. Yeah, for 4 5 months I worked for Domino's as a assistant restaurant manager over there. And after that, in March 2014, I moved to the US. And there I started working with Hyatt Regency in Chesapeake Bay. Hayat. Okay. Yeah, so this was in Cambridge, a small town called Cambridge, Maryland, and that is when I met Vicky. So we worked together for a year. Before that, I met Prasad way back in 2009. Okay. So this was so what happens is a year after you're done with your college,
you have to do like a 3 month or a 6 month industrial training. Yeah. The internship. Yeah. The internship. Yeah. So I was working with Taj Sats Flight Kitchen. Sats is a Singapore Airlines terminal services. So they have the flight kitchens where all the food that goes into the flight is made. So it's like a So big you were a plant. kitchen guy from first yeah, year. yeah. Okay. And I met Prasad there. So and we fortunately for all 3 months we were working in the same department. For kitchen. You're also a kitchen person. Okay. I was inspired by kitchen, but eventually I realized that that is not my trade. Okay. So I ended up changing it to, but Front office. not front office, but a service, restaurant management basically. After that. So I met him there and we stayed in touch. Like हमारा बाद में we got back to our college life वगैरह, but we kept in touch कि तेरा क्या चल रहा है तेरा. Because that connection was special, I would say, because for 9 hours we used to only clean shrimps. चिंगड़ा. हाँ, so basically क्या होता है ना कि when you work in a butchery हाँ. और फ्लाइट किचन्स में बेसिकली ऐसा रहता है कि यू डू ओनली वन थिंग, सुबह से शाम तक वही करना है, नो ब्रेन वर्क एनीथिंग. मतलब इट्स लाइक इफ यू कांदा काटना है तो कांदा ही काटना है. यू आर बीइंग टोल्ड, बहुत tedious काम होता है. You stick to one thing and you keep on doing that. बट यू कांट dilute or change the process because the hygiene standards and all are very rigid. तो फिर we used to clean the shrimps all day and only person who would sit next to each other was we each other basically. Because we So would no one smell. wanted to sit वो next to सारा जहाँ मरे हुए हैं सिर्फ दो इंसान क्योंकि जिंदा है. you can smell shellfish from each other. Yeah. So that was the scene. So that ended up we becoming good friends because no one else wanted to be our friend. And while we used to work there, we बात करने के लिए और कोई नहीं है. तो वो काम करते करते पूरे कॉलेज के किस्से चालू है उसका. So through his एक stories, कुछ याद आ रहा है. through his एक कुछ stories, याद आ रहा है जो बताया था इनको. नहीं, ऐसे क्योंकि बहुत किस्से थे कॉलेज के, बट ऐसा था कि मैं पुणे से हूँ तो मेरा कॉलेज पुणे से, इसका मुंबई से था, तो सिटीज इटसेल्फ हैव डाइवर्सिटी. या. तो उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ कॉन्वर्सेशंस होते थे. ही विल ऑलवेज से गुड थिंग्स अबाउट मुंबई, आई विल ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्ट. तो वो सब चलते रहता था. सो यू ऑलवेज नो हाउ मुंबई पुणे डिबेट. या गोज ऑन. सो दैट वाज इट. so through his stories, I knew his whole group. कभी मैं मिला नहीं हूँ किसी. हाँ, इट्स लाइक द जाने तुझे जाने ना वाला थिंग. हाँ. So मैं सबको जानता हूँ. Like I kind of figured the personality सबका एक तरीके से. So when I met them, अरे ये so I knew them and they were like इसको ये हमें कैसे जानता है. सेम लाइक जाने तुझे जाने ना काइंड ऑफ थिंग. बट वेयर डिड यू मीट हिम देन? So Vicky, I met him जैसे हम लोग फ्लाइट से उतरे. हमारा फ्लाइट और बिकी का फ्लाइट ऑलमोस्ट सेम टाइम पे लैंड हो रहा था. मतलब 15-20 मिनट्स का गैप एज था. फेट वुड हैव इट. नहीं, वो प्लान नहीं था हमारा कि वो जो एजेंसी के थ्रू हम लोग गए थे. सो उसमें ऐसा था कि ये लोग मुंबई से आ रहे थे और मैं आ रहा था. आई एम कमिंग फ्रॉम लाइक आई हैड टू फ्लाइट फ्रॉम कोलकाता. सो आई टुक माय फ्लाइट फ्रॉम कोलकाता एंड दे टुक देयर फ्लाइट फ्रॉम मुंबई. सो अलग अलग थे सर. कोलकाता से डायरेक्ट था. So I met him in Washington, Dallas का airport था, and I was waiting alone. I was like we were supposed to meet in the airport, and I was waiting for them. So yeah, so ऐसा हुआ कि मेरे को नहीं मालूम ये लोग किधर है, दिखता कैसा है. कुछ नहीं. बस एजेंसी ने फोटो शेयर किया था कि these are the guys that you have to meet. ऐसा. So we kind of figured उधर देख के कि हाँ he must be him. So we उधर ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ और वहाँ से फिर हमारा एक कॉमन व्हीकल था which was supposed to take us to our town. Destination. Our destination. You are from Darjeeling. I am from Darjeeling. So like Darjeeling doesn't need any introduction. So No, it does. Please. It does. Okay. So like it is very. So it's not like it's a very beautiful place. I'll say for people like who has never been to Darjeeling. Or it's Northeast will say. I'll say Northeast. So like Darjeeling is such a place. It is basically a good, like a very beautiful hill station, very famous for its like tea. So yeah, like How is the culture different from culture West like India? see it has a mixed bag of Buddhism, Hinduism. So वो ज़्यादा dominating है वहाँ पे. And the food culture especially like कैसे बोल सकते हो, like it has influence of Tibet, a bit of Nepalese food, mostly Nepalese food, and a bit of Indian food. So like मसाले भी थोड़ा बहुत मिल जाते हैं, but
मिक्स बैग है, लाइक उतना स्पाइसी नहीं रहता है जितना मसालेदार, इतना साउथ कितना एकदम हेवी मसाले रहता है वैसे नहीं रहता है, बट मिक्स बैग है, बैलेंस ऑफ ऑल. सो या सो वैसे रहता है. वेदर बहुत अच्छा है. वेदर एवरीवन लाइक्स वो उसी के लिए लोग नहीं जाते नहीं हैं. नहीं, वेदर भी बोलो तो ऐसा नहीं कि लाइक इट्स लाइक एक ही दिन में तुमको सब वेदर मिल जाएंगे. ओह, बारिश कितने बजे होती है? बारिश का कोई ये नहीं है. बारिश का ऐसा नहीं कि लाइक राउंड द ईयर कभी भी रहता है. और बारिश ऐसा होता है अगर हुआ इट विल स्ट्रेच अराउंड लाइक 7 to 8 days कंटिन्यूस वैसा रहता है. इट इज लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज वेरी ब्यूटीफुल. 6 दिन 7 दिन के बाद 7 दिन के बाद ऐसा होता है कि लाइक यू कैन हियर योर हार्ट बीट. कि ऐसा होता है कि लाइक मेरा हार्ट बीट धक 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 का आवाज आ रहा है. यू कैन हियर दैट टू. It's a matriarchal state, right? It is like How do the traditions work over there in general? so in general like when somebody like when marriage होता है, शादी होता है, it never happens कि like you know like यहाँ कैसा होता है, लड़की घर पे जाती arranged marriage रहता है, like you have to all this तुम लोग का सब कुछ मैटर बैलेंस होना चाहिए. लाइक यू नो लाइक कि तुम लोग का कास्ट से लेके पैसा से लेके सब कुछ तुम लोग का इधर पे ये होता है. बट इन आवर प्लेस इट डजंट मैटर. ऐसा होता है कि लाइक कि लड़का घर पे जाता है. हाँ ये जो तुम लोगों को क्या होता है कि हम लोग कहते हैं मैक्सिमम शादियाँ भगा के होती है. Okay. ठीक है, एक फैक्ट है कि भगा के होती है. लाइक अरेंज मैरिज इज लाइक 5% In Darjeeling? It's rare, yeah. इन माई प्लेस वैसा रहता है. तो मोस्टली भगा के लेके जाते हैं. तो रिचुअल्स थोड़ा सा डिफरेंट है. डाउरी का उतना सिस्टम कुछ नहीं है. काफी लिबरल एंड मॉडर्न. लिबरल बोल सकते हैं. और तो और नॉर्थ ईस्ट के जगह पे जाओगे, फॉर एग्जाम्पल मेघालय, वेयर द हेड ऑफ द फैमिली इज अ लेडी. Okay. So like you know if you marry your youngest girl in the family, you have उसके जगह पे लड़की के जगह पे लड़का आता है लड़की के घर में and he'll take her name, last name. okay. It happens like. हाँ, got it. मेरे को नहीं मालूम उतना, मैं इतना डिटेल में नहीं मालूम. आपकी शादी नहीं हुई है? No, मेरा हो गई है. बट इन दैट प्लेस लाइक यू नो मेघालय में आई हैड माय फ्रेंड्स फ्रॉम मेघालय, गारो खासी लोग थे. So they used to tell me कि like this thing happens, this kind of culture prevails over there. So I heard from them, so I just wanted to let you know about it too. ऐसा चल रहा है. So how was in general school life and Lebong, right? You had Yeah, it told, is Lebong. Yeah. So हम लोगों का कैसा है कि like in my days गाड़ियाँ होती थी, but you know like वो रूट ऐसा था कि like frequent गाड़ियाँ नहीं रहती थी. So it was like I used to study in army school Darjeeling. So मैं रहता था लेबोंग. So लेबोंग से भी थोड़ा सा नीचे जाओगे तो एक फुपचरिंग बोल के एक टी स्टेट है. So I belong to that tea state. I was born and brought up in फुपचरिंग. So वो जगह से कैसा है कि like आप मेन रोड से जाओगे, my school roughly around 35 kilometers. गाड़ी से. roughly around 35 kilometers. All right, okay. हाँ. So उतना किलोमीटर रहता है, लेकिन 35 like in total like जाने आने का करूँ तो that was 35 minutes kilometers रहता था. So I used to take shortcuts. हम लोग चल के जाते थे. गाड़ी तो मिलती नहीं थी, कभी कभी मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी. जब मिलता था तो हम लोग like जब भी नहीं मिलता था यूजुअली हम लोगों का क्या होता था कि हम लोग चल के ही जाते थे. So we had shortcuts. तो roughly जाने का almost around 8 to 9 minimum 10 kilometers, फिर आने का 10 kilometers. That was a daily hike for me. So that's the way like I had a kind Like of how did you? So 1-2 घंटा जाने में लगता. was So 1-2 घंटे से स्कूल ज़्यादा कितने लगता बजे था. शुरू होता? So स्कूल था आर्मी स्कूल, और वहाँ का पीटी टीचर ने डिज़ाइन किया हुआ था. तो था हम लोग का आर्मी का एक बंदा था. ही वाज एज अ टेम्पररी टाइप का एक किया था. पीटी टीचर बोल सकते हैं. सो ही हैड अ रूल कि लाइक इफ़ यू आर लेट एट योर स्कूल पनिशमेंट रहता. पनिशमेंट कैसा रहता था? रन होता था. जितना लोग भी आते थे लाइक इफ़ वी आर 10 of us, 10 लोग को रखते थे, सीटी बजाता था एंड वी हैव टू रन. फर्स्ट 3 of them क्लास में जाओ. Oh, okay. ठीक है, वो हो गया. अब सेकंड रन जितना भी बचते थे ना तो वो फिर से वो नहीं होता था. क्राइटेरिया चेंज होता था. उसके बाद बैक रन होता था. ऐसा उल्टा होता ना. जो उल्टा जो फर्स्ट 3 आते थे वो घर जाएगा, रूम क्लासरूम में जाएगा. समझ गया. रेस्ट 20 to 30 dips ऐसा वो पैरापैट के ऊपर पैर रख के पुशअप्स. और उसमें जो फर्स्ट 3 आएंगे वो जाएंगे. लास्ट का जो रहते थे walking 10 kilometers. तो वो होता था. तो लाइक आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग लोगों को. it is true, yeah. It had happened to me. So Because my cousin brother was already in military school and I was also in hostel since 7th. I know these punishments. so those things were there. So yeah, like I had to walk a lot. वो actually क्या नहीं like उस टाइप का कल्चर लाइक
जो सिचुएशंस था इट हैड हेल्प मी अ लॉट इन फ्यूचर लाइक अभी हम लोग कैसा किचन में वी हैव टू वर्क अ लॉट ऐसा रहता है कि टीडियस काम रहता है लॉन्ग स्ट्रेच में एक बार में काम करना पड़ता है सो दिस थिंग्स रियली हेल्प मी लाइक गिव अप नहीं करने का रहता है लाइक सो इट हेल्प मी अ लॉट ये कल्चर से जो कल्चर से आया हो जिस टाइप का बैकग्राउंड था सो इट हेल्प मी अ लॉट So was there any incident like which helped you to get into cooking? As I got to know from See, the, like your special the only thing which really inspired me at initial phases was my dad. Like he used to cook a lot. Like army में थे, so he used to go to different places of India. Like you know, like खाना वो लोग को different टाइप का खाने को मिलता था, टेस्ट करता था. Like he whenever he used to come back घर में जब आते थे, तो he used to replicate those things. You know, like सामान तो उतना नहीं मिलता था, but he used to try to make those things. I remember, you know, like उन्होंने पहली बार उपमा बनाया था. So उपमा मतलब रावा Yeah. और हम लोग के इधर पे क्या आता है रावा का मतलब बस सूजी मतलब हलवा बनता है Okay. हलवा मीठा रहता है उन्होंने बनाया उपमा आई थॉट मीठा रहेगा खाया नूने नमक वाला जरा फेंक दिया सो वो सब इंसिडेंट रहते थे तो या दोस थिंग्स हैपन टू मी सो Yeah. So how did you eventually learn from him? You eventually learned from him. सो लाइक यू नो लाइक इंस्पिरेशन जो रहता है ना लाइक इनिशियल इंस्पिरेशन लाइक Curiosity मेरे build होती है क्यूरियोसिटी ना, जो वो बिल्ड होता है खाने को लेके सो लाइक या डैड ने जो चीज़ किया वो सब चीज़ों से क्यूरियोसिटी बिल्डअप हुआ एंड आई एंड अप डूइंग होटल मैनेजमेंट उसके बाद फिर कोलकाता आया आफ्टर डूइंग माई स्कूल आई वेंट टू गोवा So you are an HM student. Itself. Yeah, I am. Like I went to Kolkata for my studies. उसके बाद मैंने HM ख़त्म करने के बाद फिर वहीं पे एक होटल था हाइट रीजेंसी इट्स अ 5-star होटल लाइक इट्स अ इंटरनेशनल चेन आई स्टार्टेड वर्किंग देयर In Kolkata. yeah in Kolkata only so I was there in Kolkata and I was in coffee shop it's named Waterside and like coffee shop पूछो किसी को भी it's like hell Yeah. Please tell coffee shop. Yeah. No one knows coffee shop over so here. How coffee it shop works. coffee shop usually means you know like it's a 24/7 restaurant And what it does? it cooks for everybody Yeah, it cooks for everybody in the 5-star hotel. होटल All right. फॉर द गेस्ट सो कैसा होता है कि यूजुअली हर रेस्टोरेंट्स हर बड़े होटल्स में कॉफ़ी शॉप रहता है सो कॉफ़ी शॉप का काम क्या रहता है तुमको ब्रेकफास्ट सर्व करे लंच सर्व करे और कभी कभी ये सब रहा कुछ होता है ना एक ओकेजन्स कुछ रहता है उसका कुछ बिटवीन में कुछ रहा वो भी और डिनर हाई टी वगैरह वो भी रहेगा वो चीज़ें सर्व करता है और कैसा रहता है कि फुल फ्लेज बुफे रहता है Okay, so it's like 24 hours चालू है, à la carte भी है, buffet भी है. It also caters to the in-room dining. Yeah, that's the point. À la carte, right? Now, the a la carte is something that people order from the menu. मेन्यू If people are ordering in their room, that food is also supplied 80% of it from the coffee shop kitchen. Your coffee shop stories, yeah. सो Please वही experience. वही बोलो कि स्टार्टिंग तो ब्रेकफास्ट से होता है ब्रेकफास्ट भी ऐसा रहता है कि लैविश रहता है 5-star का रहता है सो बहुत सारे आइटम्स आप बहुत बताने जाओ तो अभी लिस्ट ख़त्म नहीं होगा सो वैसे रहता है सो कॉफ़ी शॉप का एक रहता है ना कि लाइक मैन पावर का शॉर्टेज हमेशा रहता है सो आई वॉज वर्किंग इन कॉन्टिनेंटल सेक्शन वहाँ पे 1.5 आदमी रहता था मतलब एक बंदा ब्रेक वाला रहता था सो 1.5 आदमी को उतना चीज़ें करना पड़ता था कॉन्टिनेंटल सेक्शन का ब्रेकफास्ट बुफे लंच वो सब जो भी है सब बनाओ 137 कवर्स का रेस्टोरेंट था उसका बनाओ 100 and समथिंग रूम्स का ये था उसका खाना भी रेडी करके रखो लाइक इन रूम डाइनिंग का ऑर्डर्स आता था वो भी रेडी करो बार्स 2 थे उसका भी बनाओ सो इट हैड अ वो मतलब टू स्टार्ट विथ हेल राइड है वो Yeah, yeah. It's like everything is on your. Yes. Yeah. सो Yeah. And the pressure might be very this thing, right? वो तो एक्सट्रीम Unbearable. रहता So है that also made you tough. This 10 kilometers It made did, you it tough. did, it Okay, did, yeah. yeah, it Continue, did. yeah. So after, so that, what are your any stories from that coffee shop? देखो अभी Once what किचन वाला happened? देखो किचन वाला भी स्टोरीज निकालने जाओगे ना अरे ऐसे एक ऐसे कुछ तो निकलेंगे हुआ ना। होगा ना, ये जल गया सब और इधर ब्रेकफास्ट चाहिए इनको. अब इंसिडेंट बताने जाऊँगा ना तो सबसे एपिक वाला बोलूँ तो हाँ. 31 दिसंबर ओह वो रहता है ऐसा रहता नहीं कि लाइक दारू मिल जाता है आराम से हाँ. ठीक है वो इलीगल नहीं रहता है होटल अलाउड नहीं करता है बट मिल जाता है दारू समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ सो मेरा क्या था कि वहाँ पे मेरे को छुट्टी चाहिए था मेरे को छुट्टी नहीं मिला और मेरे को नाइट शिफ्ट डाल दिया ओह ओके. नाइट शिफ्ट मतलब 31 सब लोग पार्टी कर रहे हैं हम लोग खाना बना रहे हैं दिमाग घुमा हुआ था दारू मिलना शुरू हुआ एंड आई वाज आउट टुल मतलब एक्सट्रीम ब्लैकआउट ओके. हाँ. ठीक है लाइक शेफ कोड का कंडीशन बता नहीं सकता कैसा हुआ रहेगा जस्ट इमेजिन करो तो शेफ सुबह मॉर्निंग को आया और मेरे को पूछता है व्हाट हैड हैपेंड मैंने बोला गुड नाइट शेफ ठीक है गया हो गया काम फिर नेक्स्ट 1 जनवरी को आया तो
शेफ आया मेरे को बोलता है कि लाइक कम टू माई ऑफिस ओह ओके हाँ एंड देयर वाज अ लॉन्ग वे, बड़ा किचन रहता ना लाइक ऑफिस तक जाते जाते। लीमो जैसा बड़ा हाँ बहुत लंबा नहीं, रास्ता लंबा कॉरिडोर से रहता ना, तो किचन के आगे। अभी मैं उसके शेफ के पीछे पीछे जा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ और सब लोग ये सारे होता है ना कि हम तेरे को मम्बू मिलने वाला है, ठीक है ना, क्या बन there और बैठ गए। सो बोलते हाँ क्या हुआ कल, कुछ नहीं बोला, हैप्पी न्यू ईयर शेफ बस उतना बोला, खत्म। सो वैसा बहुत कुछ रहता है। सो या लाइक आफ्टर वही वाटर साइड में काम किया, तो फिर उसके बाद अपेरेंटली कैसा हुआ कि यूएस जाने के बाद मैं हाइट में ही था, जैसे साथ हाइट रीजेंसी जैसा पिकनिक, अच्छा हाँ याद ओके हाइट ही था वो भी। सो वो भी क्या था, उसका नाम भी वाटर एज। मैंने काम किया था वाटर साइड पे और आया था वाटर एज में। एच पे ओके वाटर साइड से वाटर एज का वाटर्स एज नाम का रेस्टोरेंट था इन हायत रीजेंसी जैसपिक। सो हयात इज मैनेजिंग दिस बोट राइट वो उसी के अंदर ही है ओके restaurant। हाँ या सो ये लाइक वही इस साल उसके साथ मतलब 1 ईयर काम किया वहाँ पे। फिर उसके बाद ये न्यूयॉर्क गया एंड आई वेंट टू वर्जीनिया एंड आई स्विच टू लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स। उसके बाद आई वाज why it wasn't a good experience working in US like it was a good experience working with Hyatt. Apart from that, like Indian restaurants tha. So yeah, mixed bag tha experience. Then after that, I came back and then we started our own thing. so you met him on the airport right after that उसके बाद so there were actually 7 of us living in the same house, Desi style. पूरा देसी स्टाइल में। लाइक अभी उधर चले गए कैम्ब्रिज में, उधर अकोमोडेशन हमें खुद ढूंढना है। ओके okay कुछ दिनों के लिए वी हैड अ मोटेल, सो 2-3 दिन हम लोग मोटेल में थे। इन दैट मीन टाइम तुम्हारा होटल में ओरिएंटेशन भी होगा, यू ऑल्सो विल स्टार्ट वर्किंग द वेरी नेक्स्ट डे, और तुम्हें घर भी ढूंढना है, और तुम्हें जो तुम्हारे पास नहीं है अभी। हम वहाँ पे गए तो पूरा बर्फ है, पूरा विंटर्स पीक विंटर्स चालू था। hold on okay you land into Kansas sorry where Washington वॉशिंगटन Okay, you land into से Washington. कैम्ब्रिज इट्स लाइक 2 hours yeah got it so it's the orientation ओरिएंटेशन इज द वेरी नेक्स्ट डे। okay very next day okay so how many hours was the orientation ओरिएंटेशन गोज ऑन फॉर लाइक 2-3 hours, 2-3 hours मे बी 4 hours आई थिंक। हाँ so 4 hours के बाद आप घर ढूंढ रहे हो हाँ उसके बाद कल हमें सुबह जॉब जाके फिर से उसके बाद घर ढूंढ रहे हो सोना कहाँ है हम लोग होटल में रह रहे थे। हाँ ओके वहाँ से होटल से एक अराउंड 3-4 किलोमीटर्स वॉकिंग डिस्टेंस पे देयर वाज अ मोटेल वेयर वी वर स्टेइंग देयर। so 3-4 किलोमीटर चल के हाँ क्योंकि वो टाइम पे उधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं कुछ, वेरी स्मॉल टाउन विद जस्ट 12,000 पीपल पॉपुलेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ है नहीं until and unless you have your own car or at least bicycles, and that was not like bicycle वाला weather क्योंकि it was peak winters। so you people were staying there Yeah. So we were the first batch to arrive of that year. So हम लोग 7 लोग पहले गए थे, तो हम लोग सब चीज़ें साथ में ही करते थे। वहाँ पे घर ढूंढने से लेके शॉपिंग कर रहे हैं वहाँ पे, तो ये सब किसी को चल कुछ रहा है। पता नहीं किसी को कुछ नहीं पता। any interesting First time going abroad is very new experience. You're new to many things. Then you keep learning. कुछ हुआ क्या एक्सपीरियंस ऐसा था ना कि लाइक इतना आइसोलेटेड जगह था, काउंटी एरिया था। सो आई सॉ अ पर्सन वॉकिंग ऑन अ स्ट्रीट आफ्टर अ मंथ ऑफ माय अराइवल इन यूएस। so you people were staying in hotel it was very For 2-3 days we were living in a motel, और just because we were hunting for places, ऐसा हुआ कि जो मोटेल का ओनर था he was an Indian, so he was like I have a deal for you guys। उसका एक warehouse था which he converted into a house for us। इसके like I have this, I can do this, is it okay? इतना रेंट होगा। फिर हमने कैलकुलेट किया या इट इज़ अ गुड डील। हम लोग को वो मैटर नहीं करता कि घर बाहर से अगर कैसे दिख रहा है, अंदर से रहने लायक है ना, वी आर ओके विद दैट, क्योंकि इवेंचुअली वी वेंट देयर टू मेक मनी एंड जितना सेव कर सकते हैं उतना सेव करना। सो उसके बाद like you were working together for 1 year you वी people वर देयर फॉर 1 ईयर। after that what happened after 1 year वो टाइम पे बहुत सारा सिटकॉम्स वगैरह देख के दिमाग में न्यूयॉर्क बैठ गया था, अच्छा और ऐसा था कि न्यूयॉर्क 4 घंटे पे, तो किधर से कैम्ब्रिज से कैम्ब्रिज से 4 घंटे भी नहीं हो यार, इतना पास रह के आई वांट टू लिव देयर, वो लाइक फीलिंग था। सो after landing there was a reality touch reality hit something like that hit मतलब yeah, it was expensive, it was very expensive।
लिविंग एंड सर्वाइविंग देयर. सो आई वेंट देयर एंड ऐसा हो गया कि जैसे एक साल पहले घर ढूंढ रहे थे ऐसे न्यूयॉर्क में जाके फिर जॉब ढूंढ रहे. जो हिंदी मूवीज में पहले आता था ना कि लड़का सुबह बायोडाटा लेके सब ऑफिस घूमते रहते हैं, दैट वाज एक्चुअली दैट रियलिटी. मतलब उधर जाके हर सुबह हम लोग निकलते थे जॉब ढूंढने के लिए और ऐसे करके वी हैड अ वीजा, एवरीथिंग वाज सॉर्टेड, बस जाके जॉब ढूंढने. So you both parted ways, right? After that. Where were you? I was in Virginia. देसी रेस्टोरेंट था. उसी रेस्टोरेंट में. नहीं देसी रेस्टोरेंट. देसी रेस्टोरेंट. इंडियन रेस्टोरेंट. सो इंडियन रेस्टोरेंट का उधर के इंडियन रेस्टोरेंट्स के बारे में कुछ बताइए, वो भी है. और आप जो बताने लायक तो उतना खास नहीं है. अच्छा. सो यू नो लाइक दे आर ऑल अबाउट मनी. ओके. पैसा मारने के पीछे पड़े हैं एंड लाइक द कल्चर इज अभी कैसे बताऊँ. सो या था वहाँ पे. सो आई स्विच टू अनदर इंडियन रेस्टोरेंट. इट वाज इन कैंसस. सो वो लोग का प्री ओपनिंग था एंड प्री ओपनिंग था तो लोगों के पास कुछ नहीं था. लाइक वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. तो वो एक एक्सपीरियंस था, लर्निंग एक्सपीरियंस था कि रेस्टोरेंट्स वगैरह को कैसे सेटअप दैट माइट हेल्प यू ओवर हियर फॉर श्योर. a lot. So yeah, वो सब चीज़ बहुत एक्सपीरियंस मिला, सीखने को मिला. And that was the last restaurant I worked in US. One experience from my side regarding this hotels in America, you know. So I had one chef a podcast before when it was only audio platform. So he told me he and his wife were there, and his wife was living for Hyderabad. Okay, so he was in America. So they were having they went to an Indian restaurant and saw Hyderabadi restaurant biryani and all of that, and they went and had a seat. So after that they ordered biryani, Hyderabadi biryani. ओके. सो उसके बाद देवर लाइक कि खाना खाया, देखा एंड चिकन का एक छोटा सा लेग पीस इन दैट हैदराबादी बिरयानी है फॉर हर एज वेल एंड हिम एज वेल. सो ही टोल्ड दिस वेट. उसके वाइफ ने वेटर को बोला, सर ये क्या है, मतलब एक ही पीस है, इतू सा पीस है. वो बोल रहा है कि नहीं मैम कैसा है ना, वो हमारा शेफ़ है ना, उसका आज मूड नहीं है. He told this reason ना. And after that his wife was like, अच्छा okay, is that so? आज ना मेरा भी पे करने का मूड नहीं है. She said this. ऐसे वो झगड़ा होने वाला था बट द शेफ देवाशीष she was like छोड़ो जाने दो, चलो अभी तुम्हारा फ्लाइट है, किधर तू झगड़ा कर रहे हो. That was the scene. So you will be surprised with the way the service culture works, or rather the hospitality culture works in foreign countries and in India. इंडिया में क्या है ना कि बहुत we take it very personalized और बहुत hospitable culture है. But US में it is like I'm providing you service, you are paying me. It's a transaction thing. Capitalist. उसमें emotions का कुछ लेन देन नहीं है. यहाँ पे if you see कोई टेबल आ रहा है with a kid, the guest will also expect कि I should care about that kid and give you a table on priority. यहाँ पे emotions involved है. Yeah. वहाँ पे वैसा कुछ नहीं है. They are very practical about things. कि okay $7 Capitalism. यहाँ पे लिखा Yeah, हुआ है, capitalism. That is the thing. So for Indian mentality to get along with that culture and accept it, who have lived here, जहाँ पे आप एक हाथ करो तो 3 वेटर भाग के आते हैं. तो वहाँ पे वैसा नहीं है. वहाँ पे if you don't leave a service charge, the waiter will question you. Something wrong with my service. Oh. Nothing was wrong. Then why didn't you pay me the service charge? So something like this, if you are not used to it, then it comes, कि Like थोड़ा a shocker. taken aback हो जाता है. Okay, अरे ऐसे कैसे मेरे से कोई, he is the waiter and how can he talk to me like this? Because we are used to, waiter है तो फिर वो हाँ जी, yes sir, ना sir. So we are used to this thing. तो वो थोड़ा सा cultural difference है. So don't Indian restaurants over there have these like sense of like emotional or something like that? देसी है वो तो होता ही है, बेसिक्स है. अभी एक्सपीरियंस ऐसा ऐसा रहते ना वहाँ पे. अभी एक था सब लाइक ही वाज फ्रॉम आई गेस पंजाब और हरियाणा. आई एम नॉट श्योर. ही वाज अ सर्विस गाय. और सीन क्या हुआ कि लाइक एक कल्ला, मतलब एक क्या बोलो African अफ्रीकन American. अमेरिकन लाइक ही वाज ऑर्डरिंग समथिंग लाइक कबाब था एक. इट वाज अ सीख कबाब. वो पूछा कि लाइक व्हाट इज दिस, इंग्लिश में पूछा. और जो बंदा था उसने ऐसे एक्सप्लेन किया कि लाइक अ स्लैंग वर्ड. समझ रहे हो ना क्या ना. No. Like if you want to, you can. I'll beep it. हाँ. सो वो एक लन कबाब ही बोल दिया उसने. ठीक है, दिस इज लन कबाब. Okay. ठीक है. अब उसको क्या बोलूं, लाइक ही थॉट So the Haryana person told this. yeah like Oh, the African American asked him ki what kind of kebab is this, and he said it was a Sikh kebab and he could have Did he know what is that? What does that came slang? to the I'm just curious. Yeah. And he gave him back in his own language. हरियाणी में कि पंजाबी में उसको
बुद्धि बुद्धि बोल के उसको आंसर दे दिया. And I was like, मेरे को मालूम है क्या है. Like he started speaking in Hindi. African guy was speaking in Hindi. He was speaking in Hindi. He understood what he said. So फिर होता ना एक एक्सपीरियंस. तो वैसे बोला, ओ मेरे साथ भी ऐसा होता था ना. तो लाइक दिखता कैसा हूँ. And I was like, मेरा ओनर के साथ तो मैं हिंदी में बात करता था. जब मैं बात करता था, he was like अगल बगल के, और वो जो एरिया था, I was like वहाँ पे मैक्सिमम लोग साउथ के थे. साउथ के बोले तो हैदराबादी The पॉपुलेशन. Kansas area? या कांग्रेस एरिया, वहाँ पे स्टूडेंट्स और हैदराबाद वाले के बहुत रहते थे. और हिंदी वो लोग का थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक था. ठीक ठाक रहता था. तो लाइक ही वाज लाइक आई वाज स्पीकिंग अच्छा हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो वो लोग ऐसे देखते लाइक अरे यार ये हिंदी में कैसे बात कर रहे इतना अच्छा. सो वो अलग रहता था. लाइक आई सो ना लाइक आंखें बड़े हो जाते थे वो लोग, अरे हिंदी में बात कर रहा है. सो So they used to assume you are not an Indian probably. ऑफ कोर्स कौन करेगा अभी यहाँ पे भी. Just to add one thing, जब मैं और बिकी आई थिंक फर्स्ट वीक था, आयत में both of us were walking in, और एक नया बैच का लड़का, इंडियन लड़का whom I knew, वो आया चल के, he came to weekend और उसको नी हाउ कर रहा है. बिकी उसको लगभग भोसड़ी निकल गया. हुआ ये हुआ ये. वो जब होता है तब अभी कैसा होता है कि लाइक मीन इतना हो चुका है, तो आई एम यूज टू हो चुका हूँ कि लोग इधर उधर बोलते, लोग ऐसा अपने रास्ते पे बोलते हैं, जिसको नहीं मालूम है बोलते. मैं कैसा कि इधर से हो जाता है, इधर से सुनता इधर सुनता, वो इग्नोर करता हूँ. बट दोज पीपल की पढ़े लिखे हु हैड ट्रैवल्ड, मजे के लिए होता नहीं पोक करते हैं, अरे ये सो तभी होता है. That is like very you get very हाँ तभी दिमाग खराब होता है. impulsive. हाँ. Yeah. And like so how many years in US and what happened later? So he moved there. I moved to New York. I worked at an Indian restaurant, Junoon. This was owned by, like, managed and partially owned by Chef Vikas Khanna, who's like Master Chef India ke judge. He's like a well-known celebrity chef. So I worked there for almost a year. उसके बाद I did a short stint with a supper club. There is something called as Underground Supper Club. छोटा सा restaurant होता है which only few people know. And majority of the clients over there were like Hollywood celebrities and very well-known fashion designers. That place was owned by a fashion designer. So I did like 2-3 months over there. And after that, जो routine बैठ गया था, I was like, okay, this is not working for me. Monotonous हो रहा था काफ़ी. And ऐसा लग रहा था कि okay, I need something different as of now. वही टाइम पे हाँ वही टाइम पे अभी हुआ कैसा था, जस्ट बिकॉज वी स्टेड टुगेदर एक साल, तो हम लोग का टच था और बीच बीच में वीडियो कॉल वगैरह होते रहते. सो आई यूज्ड टू आस्किंग तेरा क्या चल रहा है वगैरह. फिर तभी निकला कि यार आई एम प्लानिंग टू गो बैक होम, कि ऐसा ऐसा है. सो उसके दिमाग में वो टाइम पे आई गेस वो चल रहा था, लाइक मे बी वी कैन गो बैक टू इंडिया एंड लेट्स स्टार्ट समथिंग ऑफ आवर ओन. सो धीरे धीरे फिर वो हिसाब से सोचना चालू कर दिया. This was in year? This was in 2016. और with him only. हाँ. मैं फिर May 2016 I came back to India. And I think he came back to India after a month or so. So वापस आए और discussion already चालू था. And there used to be a college friend of mine, Swapnil. He was also involved in this. So ऐसा decide हुआ कि मैं, Vicky and that third partner, all three of us would start a small venture. वो क्या था venture, वो हम लोग eventually decide करने वाले थे, क्योंकि ये था कि कुछ करना है, लेकिन क्या करना है वो अभी तक proper ये नहीं हुआ था. बस कुछ करना है. बस कुछ करना है. So वो उतना starting में enough रहता. फिर then we started figuring कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं. और जो थर्ड पार्टनर था स्वप्निल दावड़े, ही वॉज द फॉर्मर एम्प्लॉई ऑफ जोमेटो. ओह ओके. हाँ. सो उसने पता कि हम लोग तो इंडिया गए आफ्टर 2 years, तो काफ़ी चीज़ें नहीं आई थी वहाँ पे. सो यही टाइम पे ऑनलाइन एग्रीगेटर ऑनलाइन डिलीवरी से नया नया स्टार्ट हुआ था. जब हम गए थे तभी नहीं था उतना. जब आप वापस आए तो काफ़ी फैल गया था वो. सो ही सजेस्टेड कि रादर देन डूइंग अ रेस्टोरेंट, would be wiser if we could start a cloud kitchen. So cloud kitchen में you don't need like a big restaurant space और तुमको ज़्यादा कुछ manage नहीं करना है. You just have to manage a kitchen. We'll cook the food there and we'll start sending the food from there. So that was the basic idea. Then Vicky came to India
he spent few months at home. तुम एक साथ आए थे दोनों आगे पीछे आगे पीछे आए. So उसके बाद फिर he came to Mumbai and then we started working towards it In the cloud kitchen. in the cloud kitchen. How did it work with the cloud kitchen? So the cloud kitchen was called Olive Achar. नाम का भी brainstorming ऐसा हुआ था that अभी ऐसा हुआ Olive Achar, what? Olive Achar. Olive Achar, okay. तो नाम का भी ऐसा था कि अभी हुआ ना यूएस से तुम आते हो तो तुम्हारा दिमाग में थोड़े आइडियाज Westernized ideas already, huh? वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक हमने किया कि हमने Yeah, as you tell आके your market mistakes as research well. नहीं Yeah, किया. you tell the mistakes as well. Yeah. सो व्हेन वी वर डूइंग ऑल दोस थिंग व्हेन वी आर स्टार्टिंग हमको ये था कि हमको ये चीज़ सर्व करनी. हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें थे वी वांट टू सर्व दिस. हमने ये मार्केट रीड नहीं किया कि मार्केट में क्या मिसिंग है, मार्केट को क्या चाहिए. सो वी वर मोर फोकस्ड ऑन कि हमको ये सर्व करना है एंड वी स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स दैट. हमने शुरू किया वो और फ्यू डे फिर मिस्टेक्स रियलाइज होने लग गई कि ओके ये चीज़ फूड द मेन्यू वाज गुड बट नॉट फॉर दैट सेटअप. इन्होंने बताया था मतलब जब ओपन किए थे तभी आई थिंक वी हैड I had a word with it. we had a talk about some random thing. So you were in touch, right? Until that we as were well. in No? constant touch. मतलब इतना नहीं रेगुलरली थोड़ा बहुत होता ये क्रूज पे था तो ये जाता था तो 8-9 महीने कांटेक्ट नहीं होता था. abandon India like anything because I am that way basically. मैं जहाँ पे हूँ मैं वहाँ का रहता. तो वहाँ पर से मेरी कुछ बात हुई थी इससे ऐसे. तो तभी इसने बोला था कि आई एम बैक फ्रॉम यूएस. मतलब मुझे पता चला इसने फेसबुक पे वगैरह वेरी अपडेटेड. तुम्हें पता है सौरभ क्या खा रहा है क्या नहीं. कुछ सोशल मीडिया देख लो यू विल गेट एन अपडेट. तो इसका पता चला कि अरे यूएस में गया था पता था इंडिया में आ गया तो आई कॉल्ड हिम क्या हो गया अगर. तो इसने मुझे बोला था कि ऐसा कुछ स्टार्ट कर रहा है. ही वाज द फर्स्ट अमंगस्ट द पीपल आई न्यू बेसिकली जो कुछ इनिशिएट कर रहा था ऐसा. तो मैंने बोला अच्छा यार कोई तो कर रहा है करके नहीं क्या समवन इज ट्राइंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स रेगुलर जॉब करने से. तो तभी हमारी थोड़ी सी मेन्यू के ऊपर वगैरह बात हुई थी क्या करने वाले हो ऐसे. सो द फूड दैट वी डिड मतलब काफ़ी मतलब इतना डिस्टिंक्ट मेन्यू था. वी हैड चिकन विंग्स बट चिकन विंग्स में इट वाज ओल्ड मॉन्क रम का बारबेक्यू सॉस था. सो व्हाइल ईटिंग द विंग्स यू विल एक्चुअली गेट द फ्लेवर ऑफ ओल्ड मॉन्क खाते हुए. Okay. फिर एक रेनबो था बन नहीं था अपना. Jandu Bam क्या? नहीं नॉट जंडू बम. एक बन था वी यूज्ड टू मेक इट आवरसेल्फ. होममेड था रेनबो. रेनबो कलर का था बन वो. ट्राई कलर बन बेसिकली. Okay, हाँ. नाउ इट इज अ कॉमन थिंग बट बैक देन वो टाइम पे बहुत नीश था वो सब. एंड विकी यूज्ड टू मेक ऑल ऑफ मतलब उसका दिमाग वो लेवल पे चलता था ना कि बन होममेड खुद बनाते थे रेनबो कलर का. सो बर्गर उसमें आता था ऐसा प्रॉपर कलरफुल दिख वेरी इंस्टाग्रामेबल. वो टाइम पे वो था natural color not the Putting colors and all. food colors or anything. तो वैसा था और काफी मतलब इतना इलाबरेट मेन्यू था. मेन्यू देख के लोग कॉल करते थे टेबल रिजर्वेशन के लिए ये सोच के कि ये रेस्टोरेंट है. Wow, wow. इतना डिटेलिंग था मेनू में बेसिकली. और जब आते थे देखते थे अरे ये तो सिर्फ किचन है. काफी बार हुआ लोग बिना कॉल किए आते थे ढूंढते ढूंढते उधर आके उनको रियलाइज अरे ये तो सिर्फ किचन है. एंड देयर वर टाइम्स व्हेन पीपल एक्चुअली सैट आउटसाइड ऑन द स्टेप्स. उधर बैठ के लोगों ने खाना किया. फूड वाज गुड. So this was going good. Where did it go दिस wrong? वाज गुड नॉट फॉर दैट सेटअप. For cloud kitchen, You you're also cloud have kitchen. this, पालक पनीर रेवियोली भी था ना तुम्हारे पास. ऐसा कुछ तो अभी ये चीज़ें बहुत कॉमन मतलब मिल जाती है. बट बैक देन 2016 में ये सब इनोवेटिव चीज़ें थी. प्लस कुछ मैकरेल का भी कुछ करते थे तुम लोग. एक वाइट वाइन White wine mackerel. मैरिनेटेड White wine mackerel. मैकरेल होता था. मैकरेल इज बांगड़ा लेकिन वाइट You वाइन know how to make it today even, right? Yeah. Okay. हाँ. ये सब खाना डिलीवरी किचन में किसी ने नहीं किया था. सोच में भी लाना वो थोड़ा सा स्टेप अहेड ऑफ But this was, था. you know, like good if you had taken it in some other way, like cloud kitchen, but in some proper execution. मे बी अभी could have thought of अभी it. वो सब Yeah. सीन क्या हो गया ना कि लाइक लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता था कि वो लोगों को मालूम ही नहीं था. They weren't Obvious, aware. yeah. ये तो क्या हुआ हमारा बिजनेस नहीं हुआ. So we have to change according to the customer. उसके बाद कैसा लॉलीपॉप लाओ शेजवान नहीं लाओ. इवेंचुअली पीपल Those things वही were एक्सपेक्ट करते हैं. हाँ हाँ. So like Pocket what they are friendly. habitual with. हाँ हाँ पॉकेट फ्रेंडली पेट भरे और टेस्ट भी अच्छा. मतलब टेस्ट मैटर्स. इंडियन आदमी को तुम नाम कुछ भी दो उसको
उसको टेस्ट अच्छी आनी चाहिए। तुम उसको वन वर्ड में बोलो वड़ा पाव है, या तो अ पोटैटो फ्राइड केक स्टफ्ड इन अ बन, ये वो बोल के बेचो, बट टेस्ट अच्छी आनी चाहिए। वड़ा पाव से याद है, वी ऑल्सो डिड चिकन वड़ा पाव देन। Okay. So In apart that from kitchen. burger, chicken wings, चिकन वड़ा पाव भी था मेन्यू पे। सो मेन्यू मतलब उतना डाइवर्स था। Oh, okay. हाँ, so So कहाँ, हुआ where क्या? did it Okay. crash? Yeah, please tell me. Okay. So we were located right outside IIT Bombay. Okay. Okay. दिमाग में वो था कि there are a lot of college students over there. Also Hiranandani was in the same vicinity. Okay. हाँ. So idea वो था. We were operating in Powai. So Powai area ये. Later we figure मतलब realize हुआ कि online aggregators जितने हमारा टाइप था, सब लोग का डिस्काउंटिंग मस्त चल रहा है। सो लाइक एवरी कस्टमर हु इज ऑर्डरिंग ही इज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट सम काइंड ऑफ अ डिस्काउंट। और जो हमारा कॉस्ट लग रहा था और जो प्राइस पे हम लोग थे उसके ऊपर डिस्काउंट करना वो हमको अफोर्ड नहीं हो रहा था। No profit, no loss. नो मैट लेट्स से दैट। Start with, but gradually it started making loss. Losses. Okay. हाँ. और ऐसा बाद में थोड़े दिनों के बाद रियलाइज हुआ कि जो कस्टमर्स को हम टारगेट कर रहे हैं, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को, उनका स्पेंडिंग कैपेसिटी का एक कैप है, उसके ऊपर वो नहीं जाएंगे। और जो फूड हम सर्व कर रहे हैं इट वाज थोड़ा सा प्राइस उसका ज़्यादा है। सो वहाँ पे हमारा मार्केट रिसर्च जो था ना, मार्केट रीड करने में, वो हमारी गलती हुआ। क्योंकि इसमें और एक प्रॉब्लम थी कि इन्होंने जिन जगहों पे काम किया था बैक इन यूएस और होटल्स जो हो गए, And you are starting somewhere in a totally different setup, I would say. market, तो intention was to give quality product and a good product, because that's what you have done or that's what you have learned. Now all of a sudden just because of the market आप चाइनीज का ठेला नहीं खोल सकते। So that is Just because against your market is demanding that, and market is demanding something at a low cost. So वो हमको स्विच करना, वो स्विच करने में थोड़ा सा टाइम गया। Eventually we started doing that. Chinese. Chinese, yeah, because see eventually हमको survive करना है वहाँ पे, मुझे वहाँ का रेंट भरना है। So if it was on no profit, no loss basis, like salary. Salary for 2 years we didn't withdraw any salary. So how are you fucking surviving there? घर से like literally मेरे पास मेरे मम्मी का क्रेडिट कार्ड था, Okay. which I didn't use for my personal expenses. वो मेरा सेविंग्स था खुद का, कितना burn those कितना savings. 2 साल के लिए? मतलब यूएस में थे ना पहले, so थोड़ा बहुत सेविंग्स एंड बर्न ऑल दोस। मेरा वो सेविंग्स भी तो सौरभ वही का I इन्वेस्ट, doubt। क्योंकि मैं जितना कमाता था आई यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट इन द यूएस। मतलब मैं घूमता था, काफ़ी घूमता था, काफ़ी नई चीज़ें एक्सप्लोर करता था। आफ्टर कमिंग ईयर वट एवर माई सेविंग्स वेंट इन टू द क्लाउड किचन, एंड आफ्टर दैट वो था कि ओके इन 2-3 months विल स्टार्ट मेकिंग मनी। लेकिन वो आया ही नहीं, क्योंकि अंदर जाने के बाद नए नए चैलेंजेस, हर रोज़ एक नया चैलेंज आता था। लिटरली फ्रॉम रेंट का नेगोशिएट करने से वर्गनी उधर जो वर्गनी देना पड़ता है एरिया में। अभी लोगों को लगता था अरे तुमने इतना अच्छा किचन सेटअप किया है, तुम्हें तो इतना वर्गनी तो मिनिमम देना पड़ेगा। उनको कौन बताएगा बाबा मैंने 6 महीने से खुद सैलरी विड्रॉ नहीं की है। वैसे They look at you just as a owner ना, हाँ. तो अंदर का तो पता नहीं रहता। वो बोलते लिटरली ऐसा होता था कि अरे तुम वर्गणी, हम तुम्हारा उधर सत्कार करेगा। अरे मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सत्कार यार, नहीं करवाना सत्कार मेरा। मैं जो खुश हूँ। सो वो होता था। फिर नेबर्स के साथ झगड़े होते थे वहाँ पे। कोई बोलता था अरे तुम्हारा, मतलब ये सब जो कभी इमेजिन नहीं, होटल्स में काम करते यू नेवर थिंक अबाउट ड्रेनेज का लाइन का तुम्हारा क्या होगा। लेकिन जब तुम खुद का क्लाउड किचन ऑपरेट कर रहे हो तो तुम्हें वो चीज़ में भी घुसना है कि मेरा किचन से ड्रेनेज का प्रॉपर फैसिलिटी है, उसकी वजह से और किसी को बॉदर नहीं हो रहा है। एग्जॉस्ट सिस्टम कैसा है तुम्हारा, ये सब चीज़ के बारे में हमने इनिशियली चालू करने के वक्त नहीं सोचा था। इवेंचुअली ये जाने के बाद, क्योंकि फर्स्ट हैंड था हमारा, इसके पहले कभी किया नहीं था। सो नए नए चैलेंजेस इतना, सो ऐसा हो गया था कि बाकी चीज़ों में ही हम लोग इतना इन्वॉल्व हो गए कि बिजनेस को जो मिस्टेक्स हो रहा है, वो डायरेक्शन ही नहीं है। डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम उसको सॉल्व कैसे करना है वो नहीं समझ रहा है। सो ये करते करते हो गया। सो बिकी पूरा लाइक फूड उसका पूरा लुकआउट था, फूड डिपार्टमेंट वाज विद डिपार्टमेंट उसका। और वो टाइम पे जोमेटो यूज्ड टू गेट यू ऑर्डर्स बट दे डिडंट हैव दिस डिलीवरी जो अभी सेटअप है, वो नहीं था। दे विल जस्ट गेट यू ऑर्डर्स एंड यू हैव टू फिगर आउट द डिलीवरी बाय योरसेल्फ। तो मैं मेरा बाइक पे डिलीवरी करने जाता था। उसका पेट्रोल फिर से, हाँ पेट्रोल फिर वो
हो जाता था मम्मी का क्रेडिट कार्ड। मम्मी का क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हाँ सो जो थर्ड पार्टनर था इन्वॉल्व उसका घर पे कुछ पर्सनल ट्रेजेडी हुआ सो वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता था सो बेसिकली इट वाज मी एंड बिकी बीच में एक दो स्टाफ आते जाते थे जो कांस्टेंट नहीं रहता था कभी बेसिकली इट वाज जस्ट बोथ ऑफ अस रनिंग द होल प्लेस रनिंग द होल शो वो अकेला खाना पकाता था पैक करता था मैं डिलीवरी जाके आता था फिर वापस आता था दूसरा एक ऑर्डर रेडी फिर वो लेके मैं वापस जाता था ऐसा होता था कि काफ़ी टाइम ऐसे हुआ है एक ही टाइम पे ऑर्डर्स है वन इज 4 किलोमीटर्स टुवर्ड दिस साइड सेकंड इज 5 किलोमीटर्स टुवर्ड्स द अदर एंड बेसिकली 9 किलोमीटर्स हाँ तो अभी कैसे मैनेज करना है अभी इसको दिया तो ये लेट होगा लेकिन समहाउ कुछ तो करना पड़ेगा सो जो लोकल लड़के थे आई स्टार्टेड पेइंग देम जो कि आई एम नॉट मेकिंग एनी मनी आउट ऑफ दिस लेकिन ऑर्डर आ चुका है सो आई वुड पे देम कि जा बाबा प्लीज़ ये खाना इतना सो जो डिलीवरी भी करते थे वी वर मेकिंग दैट एट अ लॉस यही होप में कि one day this will Someday make the some fortunes profit will change. Yeah. So that was a सो वो let वैसे let चल let रहा था। everybody know that someday the fortune switch is in some cases it won't you need to like change the systems yeah please continue सो काफ़ी प्रॉब्लम्स हुआ उसमें और देयर वर सम गुड डेज कि जैसे इवेंट्स वी यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ इवेंट्स लेकिन उसमें सब करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था सो जितना मैनेजेबल था इवेंट्स वी यूज्ड टू डू दैट और उसमें से देन ऐसे लमसम अमाउंट आता था फिर वो हमारा रेंट भरने में जाता था पिछले 3 महीने का लाइट पिछले बिल 3 महीने का लाइट बिल भर दिया वो मतलब ड्यूज क्लियर करने ग्रोसरी का चिकन का जो पेंडिंग अमाउंट है वैसा उसके बाद भी हाथ में कुछ नहीं आता okay yeah सो ऐसे कर करके हमने 2 साल सरवाइव किया क्योंकि का भी एक लिमिट के बाद फ्रस्ट्रेशन लेवल पहुंच चुका था फिर That's ऐसा था it. कि ओके कुछ तो करना है ना रियलाइज हुआ he was fighting against multiple things at a time. yeah your drainage system नहीं वो तो ड्रेनेज सिस्टम इज अनदर थिंग बिजनेस इज नॉट डूइंग वेल you have given up on your jobs in US yeah which is a good thing to be honest तो वो छोड़ के आए हो फिर सैलरी नहीं मिल रहा है सैलरी नहीं मिल रही है ही वाज आल्सो फेसिंग दैट मुंबई में रेसिज्म वाले एक्सपीरियंस जो पहले एट द सेम टाइम उसका शादी भी हुआ तो दैट वाज अ चेरी ऑन टॉप no the last nail in the coffin yeah that you can say upside down cherry on top पूरा एक केक बन गया था लेट केक होता ना पूरा सो so how did you manage your marriage then पैसा ही नहीं है तो हो गया ना नहीं तो क्या वो करो उसने बताया ना वहाँ पे वैसा नहीं है यहाँ के tradition yeah वहाँ पे so the अलग है। matriarchy helped so that helped him there so your wife used to send you money if needed वैसे तो नहीं होता था कभी हुआ नहीं वैसा नहीं but he is very organized about his yeah सो वैसे तो कभी हुआ नहीं तो या क्रंच था बट एग्जॉस्ट नहीं हुआ था मतलब थोड़ा कुछ था yeah so how did you get out of this then what happened next सो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल पहुंच गया कि नहीं हो रहा है इससे मैनेज क्योंकि उसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का भी काफ़ी पॉलिसीज चेंज हुआ वो ऐसा हो गया कि ओके अभी पानी इधर तक आ गया अभी नहीं हो रहा है ऑलरेडी वी वर ऑपरेटिंग एट अ लॉस इसके आगे और चलाने के लिए हमें जेब से पैसे डालने पड़ रहे सो नहीं हो पा रहा है सो दोनों ने बात की कि क्या करना है ऑप्शन था एक तो जैसे हम लोग अब्रॉड में थे वैसे वापस चले जाए या तो क्रूज जाए where did this cruise option come in between क्रूज ऑप्शन बिकॉज प्रसाद क्रूज पे था सो ये चीज़ें पता थी कि ओके देर इज समवन ऑन द क्रूज जिसको हम लोग पूछ सकते हैं देन विल गेट टू नो द प्रोसेस और क्रूज का इतना पता था दैट यू वर्क फॉर 7-8 months यू मेक लाइक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर दैट यू कम बैक होम amount amount मतलब it varies you can't say but depending on the rank but 10-12 lakh तो you can make it in a year in a 7-8 months time कॉन्ट्रैक्ट 7-8 months time so like you directly went on cruise no you are what was you got a placement in from hotel management no I did not get it through college but क्योंकि मैंने कॉलेज कैंपस इंटरव्यूज बहुत कम दिए थे क्यों आई वॉज वेरी सिलेक्टेड के हर जो इंटरव्यूज होते थे उसमें मैं नहीं जाता आई ओनली गिव इंटरव्यूज फॉर ओब्रॉयज wherein I made it to the final round couple of times but I don't know for some reason the GM didn't like me twice so he rejected me twice yeah twice and then मैंने बोला यार नहीं ओब्रॉय doesn't deserve me तो फिर फ्रेंड ऑफ माइन सेड के कई तभी न्यूज़पेपर्स में वगैरह भी आती थी ना वैकेंसीज
तो आईटीसी में वैकेंसीज का किसी ने बोला था, अभी तक आईटीसी होटल से ये भी पता नहीं था, मतलब इतना कुछ नोन नहीं था मुझे। तो उसने बोला है इट्स अ नोन होटल, ऐसा वैसा शेरटन ग्रुप का है, तो लेट्स गिव अ इंटरव्यू। तो ऐसे ही गए वॉक इन इंटरव्यू में, एंड दोनों का हो गया, मतलब द फ्रेंड ऑफ माइन एंड माई सेल्फ, दोनों का हो गया। So there were also like rounds. हाँ, मतलब 2-3 जो बेसिक राउंड्स रहते हैं, और उतना क्रैक करने लायक तो था, मतलब इतना नहीं था, आई वाज दैट बैड। हाँ, ITC deserved you. हाँ, ओबरॉयज आल्सो मींस दे टुक इट मी टिल द फाइनल, और ओबरॉयज के राउंड्स भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, 5 राउंड वगैरह लेते हैं वो एक 5000 की जॉब के लिए, बट हाँ, तो ऐसे करके आई गॉट इनटू द आईटीसी। Yeah. ITC what? ITC? आईटीसी मराठा, Okay. yeah, the one outside international airport. So I started with In the, Pune? no not in T2 Mumbai. मुंबई T2 टर्मिनल के बाहर इज आईटीसी। Okay. Oh, please continue. So there I started with in-room dining. So in-room dining is basically the one who caters to the room guest. So that way I started. Salaries were as nominal as you can expect for a hotel management guy. It was 6250. I remember precisely. Okay. I'll never Per forget year? that number. Not 6250 rupees per month. Okay, fine. Yeah, and with no accommodation and facilities provided. Okay. So you're living in a city like Mumbai with earning 5,000 rupees. One in- meal. Huh? Hotel was giving you one meal. Yeah, means meals, whatever during the shift hours, of course, those meals are covered. And you have to pay for your own accommodation and everything. तो कुछ मतलब नहीं के बराबर ही था, घर से मंगाने पड़ते थे लिटरली जॉब करके। तो वो सिचुएशन अंधेरी में This was in year 2000? 2011। Okay. या सो वैसा था। तो उसके बाद में आईटीसी वाज अ गुड रन, मीन्स आई वाज वेरी फोकस्ड अबाउट कि मुझे आई ऑलवेज न्यू कि मुझे चेंज करना है सिनेरियो, एंड इस इंडस्ट्री में आई हैव टू मेक इट हैपन। इट वोंट हैपन इवेंचुअली कि लोग करेंगे मेरे लिए चेंज, आई हैव टू मेक एन एफर्ट फॉर। सो आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं थोड़ा सा फोकस था काम के बारे में, एंड आई वांटेड टू गेट इनटू, I would say, like, as we have talked earlier, I would say you are a first bencher in HM. नॉट अ फर्स्ट बेंचर बट आई वाज ऑलवेज दैट 75 वाला guy. Okay. Means Second, not, third bench. हाँ, not a 90s वाला, but I did not have to make much effort to, score good, basically. थोड़ा सा ये In करूँ। HM, it's not anyway about this, na? It's about how you work anyway. Yeah, so basically the confidence that I have, eventually I get through things. तो वैसा था। तो उस वजह से in-room dining का था, it had 1.5 year run, and I always made it a point कि लोगों का the right people, basically the managers and all, they always noticed my discipline and all. Means I am someone who will polish his shoes every shift. So I can't wear unironed clothes. We can see it over here. Yeah. So I'm someone who gives importance to those minutes of things, polishing my shoes every shift, my handkerchief would be also ironed every day. So that is how I operated back then. Discipline. Yeah, discipline means I like it that way. तो वो सब चीज़ें इवेंचुअली कहीं ना कहीं जाके रिजल्ट में कन्वर्ट हो गई। देन द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू ड्यूरिंग माई आईटीसी वाज गेटिंग इनटू अ रेस्टोरेंट नेम्ड पेशावरी। So Peshawari is like one of the iconic restaurants of Indian 5-star hotel market. Even today. Okay. Yeah. So you name the celebrity and we have served them. So that is the case. So working for Peshawari for someone as new as me, because getting into Peshawari is already a big thing. You only get a Peshawari after 6-7 years spent in ITC. Okay. And I got it in a 1.5 years time. So that is where I felt, my commitment and my effort has been acknowledged. So the And that is a good feeling. No? Yeah, that is a good feeling because Yeah. उस टाइम पे क्या है ना कि you only see thing from one side. You don't see the time that you are spending. But now if I look back, I feel कि नहीं यार वो 3 साल कुछ ज़्यादा spend कर दिए मैंने ITC में। Okay. तो वैसा है कि I would have started some other career maybe थोड़ा सा जल्दी से. But I was making a progress. It was a smaller one, but I was making progress. It was still a progress. I Yeah, guess. it was still a progress. And acknowledgement उस तरीके से भी हो रहा था कि I was getting promotions के लिए वगैरह भी, the managerial levels, management trainees के लिए selections and all. तो वो सब चीज़ें भी हो रही थी मेरे साथ। तो I was in a very good space. हाँ, ये था कि I completely got out of any social circle क्योंकि I was so dedicated to the job thing. तो social life मतलब नहीं के बराबर। There is no such thing called social life word in the dictionary. Yeah, that is not in my dictionary. Any hotelier's- any hotelier's dictionary, there is no social life So word. if you probably ask all three of us, almost तीनों के shifts
शिफ्ट टाइमिंग सेम ही होंगे. मतलब when we were back in the day, होटल डेज. you will नहीं go नहीं in. मेरा ज़्यादा रहेगा. मेरा ज़्यादा है. आई वॉज इन कॉफी शॉप. कॉफी शॉप इज अ हेल यार. सो अभी मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ. कभी कभी कैसा नहीं होता है. नहीं, I know that's true. Let people know it's truth. सी इट्स लाइक आई यूज्ड टू स्टार्ट वर्किंग. ऐसा होता था ना कि लाइक फुटबॉल में कैसा होता है लाइक फर्स्ट विसल बजता है, टिट करके बजता है, तो वो दौड़ना स्टार्ट करना पड़ता है. आई यूज्ड टू रन और टिट करके विसल ये होता है तो फिर गेम खत्म होता है. सो 12 आवर्स ऑन अ स्ट्रेच. कभी कभी पी का भी मतलब टॉयलेट जाने का भी टाइम नहीं मिलता था. 12 आवर्स स्ट्रेट ऐसा होता था. डैश समझ रहे हो ना. मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा. और 12 आवर्स ऐसा है ना कि एग्जैजरेशन नहीं है. 12 आवर्स इज लाइक बेसिक मिनिमम आवर्स. In coffee shop, right? In 5-star coffee It shop. is considered out of, like 12 expected hours out of you. तो 12 आवर्स का बेसिक मिनिमम है. मतलब तुम्हारा- रिएक्ट भी नहीं कर सकते कि आई वर्क फॉर 12 आवर्स. So they majority of the places sign a waiver. Your shift timing would be 8 hours, but whatever you work after that is Extra. it's your wish. Okay. We are not forcing you to work. बट दे वोंट लेट यू गो होम ऑल्सो. दैट इज अनदर. मतलब ये दिखा रहे हैं कि भाई ये तलवार कुछ नहीं करेगी. मतलब ऐसा रहता है ना कि जैसे मुंबई के होटल्स में मोस्टली होता है कि वो मेगा ब्लॉक वगैरह रहता है ना मुंबई में, तो अगले दिन ट्रेन्स नहीं रहने वाली, तो दे डोंट इवन लेट यू गो होम. यू स्लीप इन द बंकर्स ऑफ द होटल ताकि तुम कल ये एक्सक्यूज ना दे पाओ कि तुम उस वजह से नहीं काम पे आ पाए या लेट आ पाए. सो दैट इज हाउ इट इज. And here people are demanding भाई 4 days work week कर दो. हम लोग का 4 days, हम लोग को 2 दिन 1.5 days में 4 days का जो काम करते हैं ना वो लोग का उतना आवाज हम लोग का 1.5 दिन में निकल Even जाता है. 5-day week for us, when we heard about it for the very first time, we were chuckling like ये क्या है, ये concept कब आया. और ऐसा होता था कि in the hotel itself there are departments who work for 9 hours with proper 1 hour break in the middle और घर जाते थे. So हम जो किचन के लोग थे उनको टॉन्ट मार रहे, ये तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं. I mean, 9 hours thing felt like a सरकारी नौकरी. बिकॉज क्या है ना, ये सर्विस और किचन वालों का ही थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाता है. क्लोजिंग टाइम में कस्टमर आ गया, किचन हैज टू कुक, 5 मिनट पहले कोई आ जाता है, देन ही ऑक्यूपाई द टेबल फॉर an hour more or maybe more than that. And you can't even go and tell कि भाई सर हो गया तो होटल निकलो. में तो सवाल ही नहीं आता. यहाँ पे समटाइम्स वी डू, बट 5-star होटल में तो यू कांट. Cannot say no. स्ट्रेच का एक किस्सा सुनाता हूँ. कैसा हुआ कि लाइक आई यूज्ड टू वर्क इन कोलकाता हैट. सो आई डोंट नो कैसा था सिचुएशन. भुवनेश्वर का कोई मतलब रिच सुपर रिच आदमी ने हमारा होटल से वो लोग को कुछ केटर करने का था. तो वो लोग का कैसा था कि कुछ बड़ा कंपनी का कार था, उसका शोरूम खुल रहा था. तो सीन क्या हुआ कि वो लोग हम लोग को पूरा बुफे जो मतलब लाइक वो लोग का लंच और डिनर था प्रोग्राम. तो हम लोग को पूरा किचन को उठा के लेके जाना था. और वहाँ पे बुफे कैसा होता है कि यूजुअली हाइट में कैसा होता है बुफे कि लाइव बनता है मोस्ट ऑफ द चीज़ें. तुम्हारे सामने लाइव कुक होता है. एक स्टेशन तुम्हारा फॉर एग्जांपल एक तुम लोगों का अगर सोचो बिरयानी है या फिर कुछ पास्ता है तुम्हारे सामने बनेगा. बिरयानी तो नहीं, पास्ता तुम्हारे सामने बनेगा. कुछ रोल है तुम्हारे सामने बनेगा. In Hyatt. हाँ वैसा यूजुअली होता है. 5 स्टार से वैसा होता है. Okay. तंदूरी रोटी है तो तंदूरी तुम्हारे सामने लगेंगी रोटी. तो सोचो कि वो सब चीज़ें उठा के लेके जानी है, तंदूर को भी लेके जानी है, ये सब लेके. People don't know this about this industry, huh? है ना. They think that अरे इसका होटल है. तो उस दिन लाइक दैट वाज माय हाईएस्ट स्ट्रेच की कैसा ऑलमोस्ट 20 to 22 आवर्स ऑन अ स्ट्रेच काम किया था. सब कुछ मतलब किचन को उठा के वो सामान वामान होता ना अपना सिगड़ी विगड़ी सब उठा के लेके जाके सेट किया, सेट करके खाना बनाया सर्व किया. सर्व करने के बाद This is nothing for you, ना then. फिर उसको उठा के फिर गाड़ी में लोड करके आने वाला सीन. तो मतलब दैट वाज एन एक्सपीरियंस. वो एक हाईएस्ट होता ना कि और स्ट्रेच. ये करने के बाद no one is gonna come and pat on your back. हाँ. तू अकेला थोड़ी किया है, सब लोग ने तो किया है. तू स्पेशल नहीं है कुछ. Despite of all that, keeping yourself motivated is the biggest challenge. कि नहीं, still I want to break through this and you know I want to conquer this. तो that makes you like mentally इतना tough बना देता है ना तुमको कि फिर you don't break down. That is why this people in this industry ना, एक तो they give up and they change, but if they stay, they're like फिर उनको worst से worst scenario भी मतलब ठीक है. Usually ये बेंचमार्क होता है. तो जो जिसको छोड़ना है वो 6 महीना मैक्स 1 साल स्ट्रेच करता है. 1 साल में दे रियलाइज दैट ओके दिस इज नॉट देयर कप ऑफ टी, दे लीव. और जो रह जाते दे इवेंचुअली स्टे इन द इंडस्ट्री.
That is what when I was doing hotel management ना the first day one of my professors was giving a lecture नए जब join हुआ था बोलते now this is a batch of 60 I want to see if after 5 years post your graduation if 6 of you stays in the industry or not. So that is the ratio of people who end up quitting hotel industry after doing hotel management. They'll end up doing कुछ MBA कर लिया कोई HR सरकारी नौकरी टाइप वो पकड़ के फिर निकल लेते हैं कुछ बैंकिंग में निकल जाते हैं, हाँ बैंकिंग में हमारे भी IT है में निकल जाते कुछ हैं। पंटर हमारे भी है कुछ एक ऐसा क्या बोलते हैं ऐसा एक्सपीरियंस लेने का है ना सर्विस में कैसा रहता है किचन में कैसा रहता है वो माहौल एक बार एक्सपीरियंस करने यू नीड टू बी देयर वंस कितना लाइवली और कितना रॉ रहता है No, I have been there. Like in my experience about this thing, HM, and we'll get back to you. So I have been putting 2 stalls. हमारे school में market day रहता, you know, market days like you put your own stall and do your own thing and all of that. So I have been the waiter. Okay. I know कि भाई वो आ रहा है तो that's the thing. In 12th, the latest experience I'll tell. My was the 12th. तो he's coming and telling me हमारा Chinese भेल था. So he's like हाँ एक भेल. मैं उसको बोल रहा हूँ हाँ एक भेल. उसके बाद दूसरा आ रहा है बोल रहे हैं हाँ 3 भेल. वही भैया चार भेल हाँ. वो थोड़ी देर में दूसरा तीसरा आ रहा है और बोल रहा है 3 भेल. 1 4 3 9 भेल हाँ. So that is how it done. You and वो बेचारा just a second. वो बेचारा क्या कर रहा है? He is like putting one and he's making one until and unless like 5 minutes I tell him अरे 4 भेल. that is also very I annoying. learned management in that. If you are in the kitchen ना if you tell the same order repetitive कि वो पिकअप हो रहा है और तू फिर सेम ऑर्डर वापस रिपीट कर रहा है ना then you won't get it with you know peacefully आ रही है वो ऑर्डर you will hear the मैं vessels वो बोल being रहा banged. था वो पार्ट जो रहता है ना अच्छा, वो जो फिर तुमको कल्चरली पता क्या चला रहता है क्या वहाँ का एनवायरनमेंट जो रहता है तो देन यू नो कि थर्ड टाइम ऑर्डर नहीं लेनी है इट्स बिना कम्युनिकेशन का मैसेज है वो you already know Also, that's the reason when you like the 9 bill and then the peak which I gave was like maybe 12 bill, 12 bills, okay, and then done. Or I was like, sir, 2 minute रुकना पड़ेगा. Okay, and then once I started serving all of that, the second batch came. It was 7 together. So I have eventually learned that कि हाँ so whenever I go to restaurants, so it's fine, sir, it's okay, sir. Sir or say it or whatsoever. I understand that. Yeah, please, you're saying और something. सर क्या होता है कि लाइक किचन का जो लैंग्वेज रहता है ना दैट इज अ लैंग्वेज टू बी लर्नड यू नो और तुमको क्या बोलते हैं वो सीखना पड़ता है किचन हाउ टू सर्विस का जो टेक इट बॉन्डिंग है ना दैट इज तो करण अर्जुन वाला ही कैट एंड माउस वाला लेकिन रहता अगर है उनमें अगर वो दरार पड़ गई तो नहीं, द दरार रेस्टोरेंट रहती वोंट है। रन दरार प्रॉपर्ली. होती है। अच्छा sarcastic thing I am telling Karan Arjun. सीन क्या रहता है ना कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब शेफ आता है अरे गांडू मस्त काम कर रहा है ठीक है यू आर डूइंग अ बैड जॉब अरे गांडू क्या कर रहा है सो एक क्या रहता है वो पिच जो रहता है वो पिच से समझना पड़ता है लैंग्वेज चेंज नहीं होता है लैंग्वेज विल बी फाउल अच्छा है बुरा है फाउल ही रहता है लैंग्वेज सो टू दैट पिच यू शुड अंडरस्टैंड वो तेरी तारीफ कर रहा है या फिर क्या Because कर once you're working in the restaurant industry, मतलब service और kitchen, you're constantly under pressure. और अंडर प्रेशर होने के बाद तुम्हारा मुंह का एक फिल्टर ना until unless तुम कस्टमर से बात करो तुम्हारा मुंह का फिल्टर निकल जाता है. So कोई भी with whoever I work with एक बोलता है देख बीच में निकल जाएगा मुंह से तो उसमें ऑफेंड नहीं होना. वो सर्विस के टाइम का रहता है वो उतना टाइम तक चलता है. आफ्टर दैट विल बी बैक टू नॉर्मल. ऐसा तो हाई प्रेशर में काफी बार होता है. मैच्योरिटी के बाद में आ जाता है कि वो मोमेंट था जब वो हीटेड कॉन्वर्सेशन हो गया है विद इन डिपार्टमेंट्स या मतलब सर्विस या किचन के बीच में बट बाद में फिर हो जाता है कि यार वो प्रेशर सिचुएशन आई डिडंट इंटेंड टू डू इट didn't mean to offend your say bad. वो बाद में हो जाता है कि चल यार एक ओल्ड मॉन्ग लेके बैठ अरे मुझे अभी तू सर्विस में मैं किचन में मुझे कुछ मतलब तेरा माभिन करने का मेरा कुछ इंटेंशन नहीं है लेकिन वो हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाता है वो तो क्योंकि मुझे तेरे से पर्सनली कुछ ग्रजेस नहीं है और सेम ऐसा तो वो टाइम पे मैं तुझे गाली क्यों दूं वो टाइम पे प्रेशर अलग रहता है तो इसलिए वो टाइम पे निकल जाता है और सामने वाला भी अगर इंडस्ट्री का रहेगा वो भी समझ जाता है कि ओके when you work in some metro city hotels 5-star hotels ना so it's never like कि एक होटल रहता है उस जगह पे ऐसे 4-5 होटल्स क्लस्टर रहता है बेसिकली होटल्स का तो यू फिनिश योर शिफ्ट 12-1 बजे वगैरह घर पे जा रहे हो ना
देयर आर दिस लेजेंडरी बार प्लेसेस जो मतलब होटेलियर्स बार बोल सकते हो तुम, जहाँ पे नाइट 12-1 बजे जाओ, मेन शटर बंद हो जाता है क्योंकि तभी तक की परमिशन रहती है, फिर बैक डोर से एंट्री होती है वो किचन के अंदर से। फिर इस टेबल पे कोई हयात वाला बैठा है, उस टेबल पे आईटीसी वाला बैठा है, पीछे के टेबल पे ताज वाला है, और सबके टॉपिक ऑफ डिस्कशन हुई, अरे मेरे टेबल पे ये हो गया, अरे मेरे इसमें ये हो गया। तो अरे आज शाला हुआ आया। हाँ, तो ये इंडस्ट्री का क्या है ना कि द चार्म इज व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑन द फ्लोर, मे बी यू आर सर्विंग अ सेलिब्रिटी, कोई बिजनेसमैन है, कुछ ये है, तो दैट इज द फेस ऑफ इट जो लोग देखते हैं 5 स्टार होटल्स में। द रियलिटी तुम्हें अगर होटल इंडस्ट्री की देखनी है, यू हैव टू एक्सप्लोर दीज बार्स। Which bars? Okay, okay, हाँ, ये होटल्स वाले जहाँ पे वेयर दे गैदर बेसिकली, देयर इज लाइक एलपी केपी, मतलब इसके शॉर्ट फॉर्म्स है ऐसे ऐसे बार्स के। नाविक करके एक है चकाला एरिया में, तो ये बार्स मतलब सुबह के 5-6 बजे तक ओपन रहते हैं, मतलब बैक डोर से। तो यहाँ पे सारे ये बटन नहीं होटेलियर्स था बैक डोर से। हाँ, बैक डोर तो ये सारे उस पे ही रहता है, सारे होटेलियर्स ही मतलब चलाते हैं उसको रात में। कहीं पे भी जाओ ना तो तुमको कोई ना कोई होटेलियर मिल ही जाएगा, उसके बारे में बात कर रहा है, उसके टेबल पे अरे माधुरी दीक्षित आई थी आज, ये हो गया, अरे वो बिजनेसमैन ने ऐसा किया, अरे इसने वेज खाना चिकन खिला दिया, ऐसा, मतलब सब यही बातें होती है। सो रियल होटल टॉक्स इफ यू वांट टू हियर, दैट इज द प्लेस। I'll take the mics there sometime. No, you'll go crazy when you'll hear the stories. That is the charm of this.